children. How are you all? I hope you all must be going very well and must be doing your studies very nicely. So, students, we are back here with our new session of class 3rd, and today we all are going to explore the chapter number 5 about our body. That means today we are going to discuss about our wonderful body. Okay, we are going to discuss our different sense organs and all those organ system which together performs and helps in the functioning of our body. Okay, let's start with the chapter. So the bodies of living things are like machines. In fact, they are even better than machines. Human body is wonderful machine because it can think, feel, grow and reproduce. No machine can do all this. So what they're saying is students कि जो living things हैं उनकी जो body है वो एक machine की तरह होती है. In fact, the bodies of living things are much and much better than machines. Machine से भी ज़्यादा better है. Human body भी एक wonderful machine है because human body can think. Human body सोच सकती है, feel कर सकती है, grow करती है, reproduce करती है. ओके एंड कोई भी अदर आर्टिफिशियल मशीन ये सभी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर बॉडी फंक्शंस? अब कभी हमने क्या इस बारे में सोचा कि हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है? व्हाट इज अवर बॉडी मेड अप ऑफ? हमारी बॉडी किस चीज से मिलकर बनी है? सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अवर बॉडी एंड इट्स वेरियस सिस्टम. तो इस चैप्टर में हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को एंड डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे. First of all, we have the topic of units of human body. सबसे पहले human body के different units को discuss करेंगे. You must have seen that the house is made up of bricks. Similarly, each part of our body is made up of tiny structures called cell. Cell is the smallest structural and functional unit of life, and cells are of many types. So, student, what they say? जैसे कि हमें पता है एक house जो बनाया जाता है वो many ब्रिक्स यानी कि काफी सारी ब्रिक्स से मिलकर बनाया जाता है. सिमिलरली हमारी बॉडी भी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है और उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है सेल. ओके, दैट मींस व्हाट कि सेल हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. एंड नाउ दीस सेल्स आर आल्सो ऑफ मेनी टाइप्स. अब ये सेल्स भी डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. Similar cells join together to make a tissue. अब वो सारे cells जो एक जैसे हैं, the cells who all are similar, तो सभी मिलकर क्या बनाते हैं हमारी बॉडी में? टिश्यू. Then similar tissues join together to make an organ. And फिर वो सभी tissues जो similar हैं, they will join together and they will make a particular organ. Organs further join together to make an organ system. And वो सभी organs जो एक साथ ही मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं वो कंबाइनली क्या बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन सिस्टम व्हिच वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. सो अगर हम एक ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें तो ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है. सभी ऑर्गन सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए. ओके, यू कैन इवन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ सेल. एक सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर लाइफ. तो जितने भी सिमिलर सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. फिर जो सिमिलर टिश्यूज का ग्रुप है इट फॉर्म्स एन ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गन्स मेक्स एन ऑर्गन सिस्टम. And the सारे organ system all together constitute a human body. Okay. Now next we are going to talk about sense organ. An organ performs a specific function. Human body has some special organs which help them to know their surroundings, and these are 5 sense organs. The sense organs are the windows of our brain. They convey messages to the brain through the nerves, and the brain processes the messages and sends order for a function. तो स्टूडेंट्स एक ऑर्गन जो है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है. अब हमारी ह्यूमन बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी को हमारे सराउंडिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं.
एंड ये स्पेशल ऑर्गन्स कौन है? हमारे सेंस ऑर्गन्स. हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. ओके, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे ब्रेन की विंडो है. दैट मीन्स व्हाट? ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे सराउंडिंग को सेंस करते हैं. यहाँ से किसी भी सिग्नल को रिसीव करके कहाँ? ब्रेन तक भेजा जाता है थ्रू द नर्व्स, बिकॉज ये नर्व्स हमारे सेंस ऑर्गन्स को हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट करती हैं. एंड इन रिटर्न फिर ब्रेन उन मैसेजेस को प्रोसेस करता है एंड उसके बाद एक ऑर्डर सेंड करता है टू द पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन for the action to be performed by the nerves only. Now, what are those 5 sense organs? We have eyes, that is a sense of sight, nose for the sense of smell, ears for the sense of hearing, tongue for the sense of taste, and last we have skin as the sense of touch. Okay? Now, you can see this is the eyes, nose, ear, tongue, skin. All these are what? These are our 5 sense organs. Now, next topic which we have is our organ system. So, in our body, some organs work together as a group to perform one or more function, and any such group of organ is called an organ system. Our body has many organ system. For example, the digestive system. So, today what they are saying कि हमारी body में कुछ ऐसे organs हैं, we have discussed it earlier also, कि वो सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ग्रुप में मिलकर कोऑर्डिनेटेड मैनर में किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वर्क करते हैं. ओके, एंड ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है. हमारी बॉडी में न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर. दे हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस, ये सभी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड होते हैं. एंड दे ऑल टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिंग फूड. ओके, नाउ द मेन ऑर्गन सिस्टम ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे गिवन है. वी हैव स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, digestive, excretory, respiratory, circulatory, reproductive, and also the nervous system. So majorly we have 8 organ systems in our body. Now let us discuss all of them one by one. And first of all, we have skeletal system. So students, skeletal system is made up of bones. Skeletal system bones का बना है. Total 206 bones are there in our body. And all bones join together as to form a framework called skeleton. You can see in this picture also कि जितनी भी ये 206 bones हैं ये सारी एक साथ ही joint हैं and हमारी body का एक framework तैयार करती हैं which is called skeleton. This is skeleton. Okay. The skeleton gives support and shape to our body. Skeleton का क्या function है? हमारी body को support, हमारी body को एक structure, हमारी body को एक shape provide करना. इसके अलावा स्केलेटन हमारी बॉडी के वेरियस डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल यानी कि जो बॉडी के अंदर है एंड डेलिकेट है, उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है स्केलेटन. लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, दे ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी एंड द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स देम. दे आर वेरी डेलिकेट. एन एडल्ट बॉडी हैज 206 बोन व्हाइल एन इन्फेंट्स बॉडी हैज अबाउट 300 बोन्स. एक एडल्ट की बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, whereas एक infant baby की body में more than 300 bones are there. The next system which we have is muscular system. The muscular system is made up of muscles. As the name suggests, name से समझ में आता है कि muscular system muscles का बना होगा और हमारी body में more than 600 muscles are there. These muscles are attached to bones. ये सारी muscles जो हैं bones के साथ attach होती हैं. एंड मसल्स हमारी बॉडी में वेरियस एक्टिविटीज अलाउ करती हैं. जो आप वेरियस एक्टिविटीज कर पाते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ मस्कुलर सिस्टम. लाइक वी रन, ईटिंग, राइटिंग, दीज ऑल आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ मस्कुलर सिस्टम. सम मसल्स वर्क अलोन, सम मसल्स वर्क इन पेयर्स. कुछ मसल्स अलोन यानी कि अकेले वर्क करती हैं एंड कुछ मसल्स पेयर्स में वर्क करती हैं. ओके. Now, next system which we have in our body is digestive system. You can see they have shown in this picture also. This is digestive system, and all these body organs all together constitute our digestive system. We have mouth. This is food pipe. This is stomach. Then this we have small intestine, large intestine, and anus. ये सारे organs मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी body का digestive system. See.
What happens to the food which we eat? It is broken down into a simpler form by our digestive system. तो जब हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक किया जाता है इसी डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड इज च्यू. सबसे पहले हम उस फूड को अपने टीथ की हेल्प के थ्रू च्यू करते हैं एंड टीथ उस फूड को क्या कर देता है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर देता है. ड्यूरिंग च्यूइंग यानी कि जब खाने को आप चबाते हो उस दौरान द फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा प्रेजेंट इन आवर माउथ. हमारे माउथ में जो एक फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज सलाइवा, उसके साथ फूड मिक्स होता है एंड फ्रॉम द माउथ, फिर माउथ से फूड जो है फूड पाइप के थ्रू अंदर, यहाँ माउथ है, यहाँ से फिर इस फूड पाइप के थ्रू एंटर करता है एंड देन इट रीचेस द स्टमक एंड इसी फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक तक जाता है. नेक्स्ट द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. Here the digested food is taken in by the blood. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है एंड फिर यहाँ से ब्लड जो है उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके हमारे अदर बॉडी पार्ट्स तक उसको लेकर जाता है. द अनडाइजेस्टेड फूड, उसके बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है इट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड हियर वाटर इज एब्जॉर्ब. लार्ज इंटेस्टाइन में से उस फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड द वेस्ट इज थ्रोन आउट थ्रू द एनएस एंड फिर जो बचा हुआ वेस्ट है उसको हम एनएस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर देते हैं. So thus the body parts that play an important role in the digestive system. इस तरीके से वो सारे बॉडी पार्ट्स जो हमारे फूड के डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. They all are mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. The liver is the largest internal organ of our body. Liver जो है, liver हमारी बॉडी का सबसे बड़ा internal organ है. Next we have excretory system. You can see this is the excretory system and the main organ of our excretory system are these kidneys, the pair of kidneys. We throw the waste into dustbin to keep our house clean. Similarly, our body also produces wastes which have to be removed regularly and this is done by our excretory system. तो स्टूडेंट्स, हम अपने हाउस को क्लीन रखने के लिए जैसे कि सारा वेस्ट एंड गार्बेज को डस्टबिन में थ्रो करते हैं, सिमिलरली हमारी बॉडी भी कुछ वेस्ट को प्रोड्यूस करती है जिसे रेगुलर बेसिस पर रिमूव करना जरूरी है एंड दिस वेस्ट रिमूवल प्रोसेस इज डन बाय आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स किडनी, लंग्स एंड स्किन को इंक्लूड किया जाता है. वी हैव 2 किडनीज एज आई शोन यू. द क्लीन ब्लड, किडनी का काम है ब्लड को क्लीन करना एंड उसमें से वेस्ट को रिमूव करना एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन. ओके. द लंग्स थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड. लंग्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज अगेन अ वेस्ट फॉर अवर बॉडी, उसे हम लंग्स के थ्रू रिमूव करते हैं. एंड द स्किन हेल्प्स टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट एज स्वेट. एंड स्किन के थ्रू बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट है उसे रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. ओके. Now, next organ system which we have in our body is respiratory system. You can see this is our respiratory system and these are the main organs which constitute our respiratory system, that is nose, windpipe and again a pair of lungs. So we need oxygen to stay alive, right? हम सभी को ऑक्सीजन गैस की जरूरत है alive यानी कि जिंदा रहने के लिए. So nose, windpipe and lungs जो हैं हमारे respiratory system के main organs होते हैं. The air enters the body. अब बाहर से एयर हमारी बॉडी में हमारी नोज के थ्रू एंटर करती है. There are small hair present inside our nose that prevent the dust and germs from entering our body. अब उसके अलावा हमारी नोज के अंदर कुछ छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एयर में मिक्स डस्ट एंड जर्म्स को एंटर करने से प्रिवेंट करते हैं. एयर पासिस थ्रू द विंड पाइप. उसके बाद एयर विंड पाइप के थ्रू पास होकर हमारे लंग्स तक जाती है. द ब्लड टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. फिर उसके बाद लंग्स उस एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड देयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं छोड़ दिया जाता है. वी ब्रीथ आउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अवर नोज एंड फिर अगेन हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो कि हमारे लिए वेस्ट है हम उसको अपनी नोज के थ्रू ब्रीथ आउट कर देते हैं. This exchange of gases and purification of blood takes place in the lungs and this process is called respiration.
So इस तरीके से गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, ब्लड का जो प्योरिफिकेशन होता है, वो हमारे लंग्स के अंदर होता है, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन प्रोसेस. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट गुड ब्रीदिंग हैबिट्स. अब कुछ अच्छी ब्रीदिंग हैबिट्स यहाँ पे डिस्कस करी गई है. नंबर 1, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ब्रीथ फ्रेश एयर. हमेशा हमें फ्रेश एयर को ब्रीथ करने की कोशिश करनी चाहिए. We must open windows and ventilators to let fresh air in. हमेशा आपको अपने घर में ज़्यादातर विंडोज एंड वेंटिलेटर्स को ओपन रखना चाहिए so that घर के अंदर fresh air आ सके. We must breathe through the nose because the hair in the nose trap the dust particles and do not let them pass through the nose. These dust particles cause allergy if they reach the respiratory tract. So students, this is very important कि हमें हमेशा अपनी नोज के थ्रू ब्रीथ करना चाहिए. एज वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो कि हमारे नोज के अंदर कुछ हेयर प्रेजेंट हैं जिन्हें हम नेजल हेयर्स कहते हैं. इन नेजल हेयर्स क्या करते हैं, एयर में मिक्स्ड डस्ट पार्टिकल्स है उनको ट्रैप करते हैं और उन्हें हमारे नोज से अंदर विंड पाइप में पास होने नहीं देते. बिकॉज अगर ये डस्ट पार्टिकल्स आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करेंगे, they can cause allergy over there, and therefore it is advised to always breathe through our nose. We should not cover our face while sleeping. सोते वक्त आपको कभी भी अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए, otherwise we will keep on breathing the same impure air again and again. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा बार बार दोबारा से सेम impure air को breathe करेंगे. You should not wear tight clothes because they hinder the breathing movement. कभी भी बहुत ज़्यादा tight clothes आपको नहीं पहनने चाहिए because वो आपके breathing movements को क्या करते हैं, hinder करते हैं. Then next we have circulatory system. This is our circulatory system consisting of heart, blood vessel and also the blood. So the function of the circulatory system is to circulate the blood throughout the body. Very important कि हमारे circulatory system का function क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स को इंक्लूड किया जाता है. ब्लड वेसल्स आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप, दैट इज वेन्स एंड आर्टरीज. आवर हार्ट पंप्स द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स कैरी इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो बेसिकली हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है एंड उसके बाद ब्लड वेसल्स इस ब्लड को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाती है. You can feel the pumping of the heart by putting your hand on the left side of your chest. आप अपने हार्ट की इस ब्लड पंपिंग को फील कर सकते हैं. अपने हैंड को अपनी चेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे आप रख के देखिए. तो आपको वहां पे क्या एक साउंड आप सुन पाएंगे, दैट इज लब डब साउंड काइंड ऑफ साउंड यू कैन हियर. दैट इज द साउंड विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग इट्स ब्लड पंपिंग. ओके, this is how our circulatory system functions. The next system which we have in our body is reproductive system. Reproductive system is responsible for producing young ones. एक ऐसा body system जो अपने young ones को produce करने में help करता है, that is our reproductive system. And reproductive system के अंदर students कुछ special organs होते हैं. ये system life को continue रखने के लिए on the earth is very very important. Now next we have nervous system. Our nervous system consists of the brain, the spinal cord and the nerves. It is a very very important system of our body. Okay, nervous system एक ऐसा system है जो बाकी other body systems को भी control करता है. इसके अंदर brain, spinal cord, this is brain, this is spinal cord and these all are nerves. ये सभी nerves मिलकर brain and spinal cord मिलकर हमारा nervous system बनाते हैं. The brain lies in the skull in the head. ब्रेन हमारे हेड के अंदर जो स्कल है उसके अंदर होता है, ओवर देयर. इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स. एंड ब्रेन हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है नर्व्स के थ्रू. दिस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द बॉडी फंक्शंस लाइक वॉकिंग, हियरिंग एंड फीलिंग. एज आई टोल्ड यू कि बाकी जितने भी अदर सिस्टम है, बॉडी सिस्टम्स हैं या जो फंक्शंस हैं, उन सभी को यही बॉडी सिस्टम, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. ओके, brain is capable of surviving for 5 to 6 minutes only if it does not get oxygen. And brain जो है केवल 5 to 6 minutes तक ही survive कर पाता है अगर उसे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली. Okay, so that's all for the chapter.
So today, students, we have discussed the very interesting and very important chapter of our science, like is the different body system. And I hope you must have understood each and every body system of your body, what is their importance, what is their function, and why they are useful to us. I hope now you all will take care of all these organ systems as they are very essential for the survival of our life. You all will eat healthy. You all will keep hygienic conditions to keep every body part healthy and safe. Let's meet in the next session. Till then, keep doing well, and thanks to everyone.